lady complains of bleeding per vaginum, postmenopausal bleeding for 1 month. Yes, sir. How do you manage this patient? First of all, I will introduce myself to the patient and take her introduction. I will ask about her educational status and her occupation, and then I will ask about her duration of marriage, and then I will ask about her parity and the age of her last born baby, and whether the deliveries were normal, and then I will ask the duration of her postmenopausal status. Then I will inquire about her postmenopausal bleeding, whether it was in the active that it was provoked or it was spontaneous, and whether it was spontaneous, the amount of bleeding and the number of such episodes and the durations of bleeding, and I will quantify the bleeding by asking about her pads and clots, and then how the bleeding stopped. I will ask about any associated pain or any discharge. I will inquire about postmenopausal symptoms of hot flushes, night sweats, or any vaginal dryness, and whether she's taking any medication for it. I will ask about her family history or personal family history of breast, colorectal, ovarian, or uterine carcinoma, or whether she's taking any medication for it, and whether she has any history of weight loss, loss of appetite, or feeling of lump anywhere in the body, or any urinary or bowel symptoms, or any pain anywhere in the body. And then I will ask about her age of menarche, and whether she had any irregular periods, and then I will ask about her whether she had any weight issues, and any diabetes or hypertension, and I will ask about whether she has used any contraception, for example OCP. Then I will ask whether she has gone to any doctor for the said complaint, and whether any blood or urinary investigations, blood pressure has been checked, and whether any X-ray, endometrial biopsy, or any other investigation has been done. Then I will ask, after inquiring about any medical disorder or any history of major or minor surgical procedure, I will ask about any history of smoking or use of any other illicit drugs, and any drug allergy. And then I will ask about whether she has any socio-economic her history satisfactory, and whether she has support at home. Then I will examine her body mass index, check vitals. हिस्ट्री मुकम्मल हो गई. ये पेशेंट है एज 60, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग. हमारा पहला डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली क्या है? Sir, postmenopausal bleeding most likely can be vaginitis. ठीक है, because benign bleeding is present 90% of the cases, and postmenopausal with endometrial CA is present in only 10% of the cases. So I will exclude the benign causes, and then तो बिल्कुल आपने ठीक कह दिया. तो अब दो कॉजेज आपने आइडेंटिफाई कर ली, एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंसी. जी सर. राइट. मैलिग्नेंसी में आपने कहा इट कुड बी सीएस सर्विक्स और इट कुड बी एंडोमेट्रियम. आप ही ने बोला ना? यस सर. यस. तो अगर 90% कॉजेज वेजिनाइटिस है, तो उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वो क्या पूछनी चाहिए? Vaginal dryness, dyspareunia, and recurrent UTIs. और UTI से पहले कि if she has vaginitis, she will have vaginal discharge. Yes sir. कि वो जब भी पेशेंट को डिस्चार्ज हो, उसकी 4-5 बातें हम पूछते हैं. Yes sir. कि ये ब्लीडिंग से पहले आपको डिस्चार्ज था? If the answer is yes, उसका कलर क्या था, उसके इरिटेशन थी, उसके साथ थी, नहीं थी, और उसकी कोई स्मेल थी, नहीं थी, ये और आपने नोट किया आपके अंडरक्लोज स्टेन होते हैं, नहीं होते, ये 4-5 बातें पूछनी थी. आपने पूछी? सर मैंने डिस्चार्ज का कहा था, अगर वो मुझे पेशेंट बताई तो आई विल यही तो है. आपने बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन आपका पहला सवाल ये होना चाहिए था, has she got any vaginal discharge? चूंकि benign condition आपने बोला, वेजिनाइटिस ज्यादा कॉमन है. Yes. तो वेजिनाइटिस रिलेटेड होगा vaginal discharge की ये 4-5 बातें पूछनी थी आपने. ओके. कि उसका रंग क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उससे इरिटेशन, स्मेल कुछ है, इस तरह की बातें पूछिए. Yes sir. और
फिर इसको रूल आउट कर दिया, इसके सवाल पूछे लिए, तो फिर हम आते हैं malignancy पे। Yes, sir. तो malignancy पे कार्सिनोमा सर्विक्स रिलेटेड सवाल पूछ लिया आपने, वो क्या है कि उसकी पैरिटी क्या है। Yes, sir. आपने नहीं पूछा उसको कोई वैक्सीनेशन लगी कि नहीं लगी। Yes. आपने नहीं पूछा उसका पैप्स में लास्ट कब हुआ था। आपने मतलब सीए सर्विक्स रिलेटेड ये 5-6 सवाल पूछने चाहिए थे आप। Yes, sir. ये तो आपने ये नहीं पूछे। फिर आ गए हम सीए एंडोमेट्रियम पे। सीए एंडोमेट्रियम अगर उसको है तो वो डायबिटिक्स में ज्यादा, आपने कैजुअली डायबिटीज का जिक्र किया आखिर में, लेकिन हाईलाइट नहीं किया। आपने कोलोरेक्टल कैंसर बोला, वो अच्छी बात हो गई। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा रिलेटेड, सीए सर्विक्स रिलेटेड पर्टिकुलरली पूछती कि पैप्स में हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी रिपोर्ट क्या थी। Yes, तो ये सारे सवाल पूछ के फिर आप जनरल जो सवाल हैं, जो बहुत सारे आपने पूछे, वो फिर पूछनी आप। समझ गए? जी बिल्कुल सर, थैंक यू। तो हम वापस जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इम्तिहान बड़ी दूर है। आई एम नॉट इन ए हरी। तो हमने सीए सर्विस पे 2 क्लासेस ली, तो मैं वापस आता हूँ। भूल जाए आपने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं अब से फिर टाइम करता हूँ आपका कि मैंने सीन ये दिया। अ पेशेंट एज 60 had menopause for 6 years, now complains of bleeding per vaginum for 1 month. Yes, sir. First of all, I'll introduce myself to the patient and take her introduction. I will ask about her educational status and her occupation, duration of marriage. Then I will ask about her parity and age of last born baby, and whether the deliveries were normal. And then I will inquire about her postmenopausal bleeding, whether it was provoked or whether it was spontaneous bleeding, and amount of bleeding, and amount duration of each episode, and how the bleeding stopped, and whether there was any if any postcoital bleeding. I will ask about whether the patient the amount of postcoital bleeding, and whether it was associated with any discharge. And then I will ask about husband, multiple partners, patient's partners, whether any pap smear has been taken, Discharge, and बेबी whether डिस्चार्ज का फिर आप भूल गई ना। पूछ रही हूँ इसके बाद। आपने सिर्फ डिस्चार्ज पूछा, यस सर। उसके फीचर्स नहीं पूछे। इफ शी हैड डिस्चार्ज, ये सवाल पूछूंगी। यस सर। ये नहीं पूछा कहा आपने इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज, फुल स्टॉप। आपके खुद बोला मुझे कि 90% चांस है उसको वेजिनाइटिस है। बाबा उसको हाईलाइट करो फिर वेजिनाइटिस को। यस सर। वो कैसे हाईलाइट होगा? वो उसके रिलेटेड सवाल पूछेंगे आप। फिर बोलो। यस। डिस्चार्ज से आगे। Okay, I will inquire about discharge, its amount, color, smell, blood, whether blood stained or pustular when associated with any itching. Then I will ask about vaccination, immunization status and pap smear. And then I will ask about any dyspareunia, vaginal dryness, or any hot flushes, and whether she's taking any medication for it. Then I will ask about any associated abdominal pain, and I will ask about her, any family history or personal history of breast, colorectal, uterine, or ovarian carcinoma, or whether she's taking any medication for it. I will ask about any history of weight loss, loss of appetite, or feeling of lump anywhere in the body, any urinary or bowel complaints. And then I will ask about age of menarche, and any weight related issues, whether she has taken any oral contraceptive pills, whether she had any diabetes mellitus or hypertension. And then I will ask about whether she has gone to any doctor for the said complaint, and whether she has taken any... बस ये यहाँ पे रुक जाओ, बस काफी हो गया। Yes sir. हिस्ट्री, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन।
Acha. I will examine the patient's BMI and her vitals, and then I will look for any pallor and her thyroid status and any enlarged lymph nodes, and then I will examine her breast and other related examination, and then on per abdominal examination, I will assess for any pain, tenderness, and whether there is any mass palpable in the abdomen. If present, then I will assess its size, margins, consistency, tenderness, and whether it's mobile, freely mobile, and whether there's any bruit audible on the mass, and I will assess for any visceromegaly and percussion nodes as well. On local examination, I will assess for any जहाँ malignancy का सोचे वहाँ पर abdomen आपने ascites को के लिए rule out करना है during exam. Yes, sir. If need be, I'll do shifting, dullness, or percussion in the flat. Okay, sir. Okay. Then on local examination, I will assess for any bleeding or discharge and local vulval atrophy. Then on speculum examination, I will assess the health of the vagina and vulva. And then if pap smear already not taken and there's no bleeding or discharge, I'll take pap smear. Then I will do bimanual examination in which I will assess the size. Just quickly, cervix का लफ्ज नहीं बोला आपने, speculum पे बोला vulva and vagina. Sorry, vagina and cervix. Sorry, mistake. तो cervix को जरूर बोलो ना, क्योंकि आपके differential diagnosis में वो है. Yes, sir. On health of cervix. Yes, sir. Then on bimanual examination, I will assess for size, mobility, consistency, tenderness, and any of the uterus, and any adnexal pathology and parametrial induration as well. And on rectal examination, quick, ma'am, sir recommend करते हैं यानी rectal examination, I can feel for the rectal mucosa, for the rectal mucosa, whether it's adherent or not. Then I will ask for baseline investigations for blood group, complete blood count, in which I'll ask for hemoglobin, total leukocyte count, platelet count. I will ask for fasting blood sugar, midstream urine, and HBS and screening anti-HCV and HIV if she has a history of postcoital bleeding. Then I will, on specific examinations, I will inquire about pap smear. I will inquire about TVS ultrasound. Inquire कहाँ चले गए? जी? You're again saying I'll inquire about pap smear. Ask about. नहीं, check. Sorry, I'll check. I'll check her transvaginal scan report, in which I will see for the endometrial cavity whether there's any fluid, then endometrial thickness, and endometrial myometrial junction regularity, and myometrial ecotexture and size of the uterus, and any adnexal pathology. And I also need to know the whether there's any ascites or on abdominal scan. I want to know the status of the adnexa and ultrasound KUB. Then चले, तो मैं कहता हूँ कि आपने जो TVS करवाया तो आगे endometrium is 12 millimeter and irregular. 12 millimeter and irregular. It means that she is at high risk of endometrial carcinoma, as the cutoff as more than 5 mm thickness means that she has a 31% chance of having endometrial carcinoma. So I will proceed for biopsy, endometrial biopsy. That can be done either through hysteroscopic guided biopsy or that can be done. Hysteroscopic guided biopsy, or if not possible, then pipal sampling. If inpatient hysteroscopic guided biopsy done, I need chest X-ray, ECG, and RFTs, LFTs for the anesthesia. And if then I want the biopsy report. Good. Biopsy report आ गई जी कि इसको endometrial carcinoma. Sir, type of the carcinoma and grade. Adenocarcinoma. Grade. Let's say grade 1. Grade 1. Then this is a diagnosed case, so I will complete my pre-op investigations, in which I will need chest X-ray and MRI scan, apart from the anesthesia investigations. MRI करने का क्या object?
So MRI shows the extent of the spread because in this staging, preoperative staging is done through MRI, in which the spread of the tumor to the inside the myometrium is all seen, as well as in the perimetrial area. And for that, I want MRI. And also lymph nodes. Lymph nodes, yes sir. चलो, तो अगर ये let's say कि ये stage 1 endometrial carcinoma है. Stage 1, yes sir. तो stage 1 में 1A. What do you understand from stage 1? Yes sir, stage 1A1 है या 1A2? A1. A1. A1 है, ठीक है. I will counsel my patient regarding the diagnosis that she. बताओ ना. मैंने Yes, पूछा, do you understand from endometrial carcinoma stage 1? Yes, sir. I understand from endometrial carcinoma stage 1A1 that it is limited to the uterine corpus, as well as A1 shows that it is less than, it has invaded less than 50% of the myometrium, and there is no other mets or lymph nodes. Good. How will you manage this patient? I will manage the patient by, first of all, counseling the patients and her relatives about the diagnosis, that she is having a diagnosed case of endometrial adenocarcinoma that is, according to our clinical staging, is stage 1A1. And I will tell her about the management options, that is, we will need surgery for it, and the surgery for it will be total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy. I will counsel them about the pros and cons of the surgery, as well as the that we will do most probably laparoscopic TH plus BSO, and I will tell her about the risk associated with the surgery, and then I will manage her with multidisciplinary team approach with a gynecological oncologist. I will give her the treatment options. What is the option? एक तो ये LAVH हो गया, और क्या करें? Yes, the दूसरा option, if she's unfit for surgery, then the option of radiotherapy is there. तो लेकिन first choice क्या है? First choice is patient में sir surgery है, और cancer में first choice surgery. चलो हो गया, उसकी TH BSO तो सब कुछ हो गया, LAVH हो गया. Yes sir. Yes sir. फिर क्या करेंगे? Sir, as the patient is 60 years old, but the stage is 1A1, so and the cancer was also grade 1 and low grade, and it was adenocarcinoma, endometrioid tumor. So she does not need radiotherapy, but this will be decided by the multidisciplinary team. And if it's decided that she does not need radiotherapy, I will counsel her about the follow-up, that she needs a 3-monthly follow-up for 3 years, and 6 monthly for 5 years, and then annually for life. And in follow-up, I will do her local examination and ultrasound scan, TVS. पहले पूछूंगी symptoms का history, yes sir, examination, and then ultrasound, TVS. Good. And I will tell her about the prognosis of her stage as well. Sorry, I forgot to tell this in the counseling, that her prognosis is 85% 5-year survival. Good. पहले लफ्ज बोलो, गुड, रीएश्योर, ठीक हो गया. चलो, अब हम आ गए कि अगर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा स्टेज 2 है, इसको व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? Sir, it's stage 2. It means that it has invaded the myometrium, as well as it has invaded the cervical stroma. So how will you manage this patient? The treatment for this patient, according to the book, is it can be through laparoscopic TH BSO, or it can be radical hysterectomy plus bilateral salpingo-oophorectomy along with staging laparotomy. आपने पहले ये बोलना, रेडिकल सर्जरी होगी अगर होगी, ठीक है, and followed up by रेडियोथेरेपी. सर, हम TLH बोल सकते हैं एग्जाम में, मतलब क्योंकि EPM में हाँ होती है, क्यों नहीं? यस सर, ठीक है, होती है. चलिए, तो इसको छोड़ के अब मैं वापस आ जाता हूँ. पेशेंट यही है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, आपने उसको एग्जामिन किया तो कोई वेजिनाइटिस या सर्विक्स हेल्दी,
और आपने उसका TVS करवाया, एंडोमेट्रियम एट्रोफिक 3-4 मिलीमीटर, यही पेशेंट। Yes, sir. हाउ शैल वी मैनेज दैट पेशेंट? इसको भूल जाओ। अब आई Sir, सेंड यू। I will also inquire about HRT, whether she's taking and whether there's any fluid in the endometrial cavity. And when it's less than 4 mm, I will do her examination. Examination TVS to ho gaya na, then I will reassure the patient about the first episode that her endometrial thickness is quite less, and the ultrasound is also reassuring. So most probably she's not having any pathology, but I will follow her up after 6 months. I don't know about follow. हाँ, तो अगर रीएश्योर करो तो अगर फिर एपिसोड हो, फिर Second अर्लियर आए, वरना 6 महीने बाद आ जाए। Yes, sir. Yes. ये कहोगी। If Yes. she gets another episode, she gets another episode. Sir, if she gets another episode, then we will do her biopsy. Endometrial biopsy. Yes, sir. किस तरह से? Sir, hysteroscopic guided biopsy. ये बोलो। Yes, आपने sir. पेपर बोला था, पेपर नहीं बोलना। Yes, sir. ठीक है। और ये बोलो हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी, जो कि by blind DNC or people, you are likely to miss the lesion जिसका रिस्क बहुत हाई है। Yes, sir. people तो पता नहीं 50-60% डायग्नोस्टिक है, ब्लाइंड DNC 75% है। तो कॉर्नर पे जाके अगर कोई लीजन है वो नहीं मिलती इन दोनों से, इस तरह से बोलना है। Yes. If there is a small lesion in the uterine cavity, we may miss that during PIPPL and blind DNC. इसलिए histoscopic DNC ये बोलो। Yes, sir. चलें, अगर सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए मारिया। सर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, और जब आप उनको पाइपल से उनकी सैंपलिंग करते हैं तो देयर इज एडिक्वेट सैंपल भी आ जाता है, और उन्होंने साथ में लिखा हुआ है कि हिस्टेरोस्कोपी को प्रेफरेबली तब प्रेफर आप करें जब कोई आपको फोकल लीजन जो है ना वो नजर, जैसे आपको कोई पॉलिप नजर आ रहा है ना एंडोमेट्रियम में, क्योंकि वो तो लेकिन मिस हो जाएगा। अगर आप ब्लाइंड DNC का पढ़े, उसमें ये जो मैंने बोला है यही लिखा हुआ है कि हम रूटीनली ब्लाइंड DNC या पिपल करते हैं कि उसमें जो कॉर्नू में जाके छोटी सी लीजन है, देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ मिसिंग दैट। ठीक है सर, फिर एग्जाम में इस तरह ये मतलब ना इसका प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ तब प्रेफर करें कि जब आपकी, हम मतलब फिर दोनों बता सकते हैं कि भाई अगर हमें फोकल लीजन अगर ही तो हम वी विल गो प्रेफर हिस्टेरोस्कोपी, अदरवाइज वी विल गो फॉर इफ द एंडोमेट्रियम इज रेगुलर और हमें कोई उसकी फोकल लीजन नहीं है तो फिर हम उसको पाइपल कर लें। वो पहले हिस्टेरोस्कोपी बोलो। अच्छा ठीक है। फिर ब्रेक देके कि पिपल की द प्लेस फॉर पिपल इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड ओनली, ये जो आपने बोला। ठीक है, थैंक यू सर। ताकि ये आपने दोनों बोल दिए तो फिर एग्जामिनर आपसे आर्गू नहीं करेगा। जी सर। ये कहेगा कि आपने सिर्फ हिस्ट्रो बोली है, वो पिपल नहीं बोला, तो वो कहेगा पिपल नहीं कर सकते आप, वो किताब में तो लिखा हुआ है। तो फिर ऐसी झगड़े वाली बात है, डिबेट करने की बात। तो आप बोलिए, इन दिस केस द गोल्ड स्टैंडर्ड इज हिस्टोस्कोपिक डायरेक्टेड endometrial biopsy. ठीक है। However, people and blind DNC can be useful. उसकी परसेंटेज ऑफ सक्सेस ये है। और जो आपने फिक्रा बोला, मुझे मेरे इल्म में बोली कि कैंसर सेल्स लूज होते हैं, वो पिपल में भी आ जाते हैं। ये मतलब आप उसको सेकंड रेट रखिए, क्योंकि अगर आप हिस्टोस्कोपिक डायरेक्ट बायोप्सी बोलते हैं उसमें एग्जामिनर को आप कैसा डिबेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स दे हैव
this information. ठीक है, थैंक यू। सर हम हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी आउट पेशेंट तो नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं? हिस्टेरोस्कोपी आउट पेशेंट प्रोसीजर है, आजकल तो कंसल्टिंग रूम प्रोसीजर है। साथ में प्रोसीजर जी, बायोप्सी भी साथ में तो नहीं अब जब आपने स्कोप डाली तो बायोप्सी तो बहुत ही एक छोटा सा प्रोसीजर है। यस मेन प्रोसीजर जो उसके स्टेप्स हैं वो तो स्कोप डालनी कैसे है, अब फिर उसके बाद विजुअलाइज क्या क्या कैसे करते हैं, फिर तीसरा है कि इफ यू फाइंड देयर इज अ लीजन उसका एक पीस कैसे निकालते। यस सर मुझे ऑफिस हिस्टोस्कोपी वेस्ट में तो बहुत होती है, हमारे यहाँ अभी हिस्टोस्कोप वैसे ही नहीं पॉपुलर हुई, ऑफिस में कहाँ जाएगी। सर एट्रोफिक बोलना ही है, आपने बोलना ही है। सर एट्रोफिक वजाइनिटिस हो या एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस हो, इसमें डिस्चार्ज हो कि वजाइनल डिस्चार्ज हो कि एट्रोफी जो है सर उसमें तो ड्राइनेस होती है ना। एंडोमेट्राइटिस अगर हो तो उसमें जनरली पायोमीट्रा बनता है, जो कि वो जो डेब्री है वो इंटरनल ऑस को बंद कर देती है और वो पस अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, पायोमीट्रा बनता है जनरली। लेकिन अगर वो इंटरनल ऑस ब्लॉक नहीं हुई, फिर वह ज़ाहिर है कि वो पुरुलेंट मटेरियल इट कैन कम इनटू द वजाइना एंड कॉज पुरुलेंट वजाइनल डिस्चार्ज। तो इसलिए इस पेशेंट में एंडोमेट्रियम टीवीएस पे दे विल शो यू कि देयर इज फ्लूइड इन द यूट्राइन कैविटी, और वो आपने उससे पहले एग्जामिन किया है तो सर्विक्स लुक्स हेल्दी बट दे मे बी पुरुलेंट डिस्चार्ज कमिंग आउट ऑफ सर्विक्स। सर अगर हिस्टोपैथोलॉजी में एट्रोफिक एंडोमेट्राइटिस आ रहा है तो क्या हम उसको ओरल एस्ट्रोजन देंगे या लोकल एस्ट्रोजन देंगे? जी, ओरल देने का एस्ट्रोजन डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको वार्न करेंगे, पेशेंट को वार्न करके देने में हर्ज कोई नहीं कि एस्ट्रोजन हमको देंगे, उससे आपकी एंडोमेट्रियम विल रिस्पॉन्ड एंड बिकम हेल्दी, लेकिन जब आप बंद करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लीडिंग है जिससे आप अपसेट ना हो जाना। ये काउंसल करके पहले काउंसल फिर ओरल दे सकते हैं। जो लोकल देते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन लोकल वजाइना और लो यूट्रस में भी ऊपर तक नहीं जाती, इसलिए वो इतनी यूजफुल नहीं होगी। तो देना अगर एंडोमेट्राइटिस है, ओरल एस्ट्रोजन विद द काउंसलिंग that on stoppage of bleeding of treatment they will be bleeding. सर फिर इसको कंबाइन करके दे देंगे ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन? कंबाइन तो तब करेंगे अगर वेजिनाइटिस भी है। नहीं सर ओरल और वजाइनल नहीं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंबाइन करके दे देंगे ना, मकसद है। हाँ कंबाइन करके दे दें, ये एस्ट्रोजन अकेला दे दें क्योंकि आपने 1-2 साइकिल देना है। ये एस्ट्रोजन अकेला देने का लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट है कि वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है, 2-3 साइकिल में देने से नहीं होता। वेदर यू गिव कंबाइंड पिल और ओनली एस्ट्रोजन इट डजंट मैटर। तो सर 1-2 साइकिल से रिस्पांस आ जाएगा तो फिर दोबारा कंप्लेन नहीं होगी पेशेंट को? नहीं होगी। आपने वो जो मतलब हर पेशेंट की एट्रोफिक एंडोमेट्रियम होती है, तभी तो कहा ना 3-4 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो वो फिर आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो हर एक को एंडोमेट्राइटिस नहीं होता। जब एंडोमेट्राइटिस हो जाए फिर उसका ट्रीटमेंट है कि एंडोमेट्रियम को स्टिमुलेट करें, थिक करें, ताकि वो इन्फेक्शन जो है लोकल दूर हो जाए, बस फिर खत्म। सारी उम्र के लिए तो नहीं देना। थैंक यू सर। एक दफा आप रेलेवेंट एग्जामिनेशन पे कमेंट कर दें सीए एंडोमेट्रियम के केस में। जैसा डॉक्टर मारिया ने बोला कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जहाँ पे मैलिग्नेंसी का केस आप सस्पेक्ट करते हैं, मैं 3-4 दफा ये दोहरा रहा हूँ कि आप ये ना बोले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे परकशन ऑफ द फ्लैग्स। आप विस्ट्रोमेगाली बोलते हो, आप लिवर स्प्लीन बोलते हो,
मैस अगर है उसकी डिस्क्रिप्शन सब कुछ बोलते हो, नहीं बोलते तो असाइटिस नहीं बोलते। तो ये एक पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि ऑन लोकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली आई इंस्पेक्ट, ये डॉक्टर मारिया ने इस्तेमाल नहीं किया था लफ्ज, आई विल इंस्पेक्ट वल्वा। उन्होंने स्पेकुलम पे वजाइना और वल्वा बोला, जो कि नहीं था, मैंने इग्नोर कर दी इस बात को। तो आप आई विल इंस्पेक्ट हेल्थ ऑफ द वल्वा, फुल स्टॉप, आगे कुछ नहीं बोला। और जब वल्वा हेल्थी है देन आई विल सेपरेट द, इस तरह से बोलो, आई विल सेपरेट द labia majora and minora and inspect for any discharge at the introitus. If there is a discharge, उसके फिर मैं फीचर देखूंगी वो क्या है, जो डिस्चार्ज के फीचर हम बोलते हैं, आज भी बोले। But after inspection of the introitus, then I will insert speculum, जो भी आप if the ये इस तरह से बोल दें तो मेरे जैसा मुश्किल एग्जामिनर और खुश हो जाएगा कि if the patient is in dorsal position, I'll use couscous. If the patient is in lithotomy position, I will use Sims speculum. एग्जामिनर की बड़ी तसल्ली होगी, आप लोग नहीं बोलते। तो after speculum examination, I'll look at the cervix and walls of the vagina for the health. If they are healthy, then I will, अगर वो पेप्समियर नहीं हुआ वो हिस्ट्री में आ जाएगा, मैं लूंगी पेप्समियर, क्योंकि इम्तिहान में अब तो लॉन्ग केस ही नहीं रहा, इम्तिहान में इट वाज एक्सपेक्टेड कि आप लॉन्ग केस में उसका पेप्समियर लेंगे। So after inspection of the cervix and vagina, if they look healthy, I'll remove the speculum and look at the blades if there is any discharge on the blade, and look for its features if there is discharge. Then I'll do bimanual examination. On bimanual examination, I'll feel, number one, for the uterus, size of the uterus, position of the uterus, and mobility of the uterus. Hello. If there is any abnormality, then वो क्या है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, जो उसके बाद एडिनेक्सा, I'll feel for any mass in adnexa or in tenderness or induration. ये तीन लफ्ज बोल। और then I'll withdraw my fingers, inspect the tip of the finger for any discharge on the tip of the finger. Then खत्म नहीं हुआ, then I will cover my patient properly and counsel her about my findings. मैं दोहरा दूं फिर, क्योंकि ये सारे स्टेप्स आप इस तरह से नहीं करते। अब तो इम्तिहान में शायद पीवी करने का मौका नहीं मिलेगा। सर पर रेक्टल का बोले ना, इसमें पर रेक्टल एग्जामिनेशन, वो पर रेक्टल हर एक का नहीं करते, जिसमें इंडिकेटेड हो फिर आप कहेंगे पर रेक्टल एग्जामिनेशन। सर स्टेज वाइज ट्रीटमेंट भी हर एक का नहीं पर रेक्टल करना, जिसमें इंडिकेटेड है उसमें करना। तो चूंकि पर रेक्टल एग्जामिनेशन इज मोर पेनफुल टू द पेशेंट, अनकंफर्टेबल बनाता है। एज एक मिनट है ना, मैं एक मिनट में आता, यूसुफ चला गया, एक मिनट मेरी होगी जी बात, साहब से भी हुई है, आप आते हैं तो यार वो कुड़िया ले ली सही। हाँ जी मुझे पता है। She's not being properly looked after. उसके लिए release की दस दिन की ऐसी 3 दिन की जरूरत है, जरा उसको प्रॉपर करो, मुश्किल नहीं। जी सर एक और बात भी पूछती है। मैं आप निदा मेरे बात बोलेंगे।
मेरे बाद निदा ही बोलेगी और कोई ना बोलेगी क्योंकि मैंने उनको इंटरप्ट किया। तो आप पेल्विक एग्जामिनेशन ये आदत बना लीजिए, क्योंकि लेडी डॉक्टर तो अब भी पेल्विक एग्जामिनेशन करती है। अब प्रैक्टिकली मुझे पीवी किए हुए, वैसे पिछले हफ्ते एक अनमैरिड लड़की आई थी, शी इंसिस्टेड आई शुड एग्जामिन हर लोकली, वो और बात है। उसके अलावा मुझे तो कई साल हो गए पीवी किए हुए। तो खैर, आप पेल्विक एग्जामिनेशन अपनी प्रैक्टिस में आदत बना लीजिए। नंबर 1, I'll consult my patient. Number 2, I'll put her in a position in which I wish to examine. Dorsal position है तो जो knees flex at hip and knee joints, और फिर कवर करूंगी, कवर कवर कवर, important है, बोलना है। फिर उसके बाद I'll inspect vulva, then I'll inspect introitus, then I'll do bimanual speculum examination, inspect cervix and vaginal walls and any discharge on the speculum, then bimanual examination, uterus का size, shape and position, फिर adnexa, और उसके बाद withdraw my fingers, again inspect for any discharge, फिर cover the patient, ask her to dress up and then explain my findings to the patient. ये कहना। जी निदा भी आप क्या कहना? सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर हमारे पास बायोप्सी रिपोर्ट पे आ जाए एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, हाँ, और अभी कोई उन्होंने नहीं कहा कि कोई आपका कार्सिनोमा है या मैलिग्नेंट, तो उसमें भी हम मतलब ये जो एमआरआई वगैरह है ये कराएंगे या नहीं? नहीं, एमआरआई नहीं करने की जरूरत। एटिपिकल पहले तो अगली क्लास हम ये हाइपरप्लेजिया की ना ले लें। जी प्लीज सर, और डिफरेंट बायोप्सी रिपोर्ट्स की भी। वो सारी चले अगले आप ही केस रिप्रेजेंट करेंगी निदा, जरा बोले वही मुंडा को। अगली क्लास जो होगी वो होगी पैप स्मीयर एंड हाइपरप्लेजिया एंड CIN वगैरह इन चीजों पे होगी। तो आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए। स्टेज वाइज ट्रीटमेंट कब रिपीट कर दे सर? किसका जी? ये तो आसान है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा तो आसान तरीन है। वो जैसे मारिया ने बोला, स्टेज 1A, उसमें ये चूंकि अभी मोर देन 50% मायोमेट्रियम इन्वॉल्व नहीं है, उसका ऑपरेशन इलाज है THBSO या LAVH and BSO, वो कर दीजिए। और उसके बाद फॉलो अप है उसका, और ट्रीटमेंट नहीं है। काउंसल के she doesn't need any more treatment and follow up, और फिर रीएश्योर। अगर उससे बियॉन्ड है तो फिर हिस्टेक्टमी कीजिए, वो रेडिकल हिस्टेक्टमी कर लीजिए या ऑर्डिनरी हिस्टेक्टमी फॉलो अप बाय उसको रेडिएशन ट्रीटमेंट जो भी है, और उसका फिर फॉलो अप। जी डॉक्टर सबीन कुछ कहना चाहते हैं? सर फॉलोअप के बारे में बात करी थी कि फॉलोअप जो हमने पढ़ा हुआ है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में, फर्स्ट 2 ईयर तक 3 मंथली होता है, फिर नेक्स्ट 3 ईयर तक 6 मंथली होता है, फिर एनुअली होता है थ्रू आउट लाइफ। लेकिन जो डॉक्टर मारिया ने बताया वो मुझे समझ नहीं आया, उनका थोड़ा सा चेंज था। तो आपने बोला वही ठीक है, वो ठीक है, मुझे भी यही पता था, यही मारिया ने थोड़ा फर्क बोला था। तो सर ये सर्विक्स का, सी एंडोमेट्रियम का, सी ओवरी का, सर तीनों का सेम फॉलो अप है? ऑलमोस्ट सेम। फॉलो अप रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। ये पहले साल उसको एवरी 3 मंथ, तो दूसरे साल एवरी 6 मंथ, फिर तो उसका एवरी ईयर। आसान है। सर ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा बता दें इस पेशेंट की। इन्वेस्टिगेशन जो है, दे आर एक हेल्थ प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, और स्पेसिफिक इस पेशेंट की कोई ब्लड रिलेटेड नहीं है। तो मैं आई डोंट नो एनी और इन्वेस्टिगेशन बजाय इसके कि एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी या हाइपरप्लेजिया सस्पेक्ट करते हैं, वहाँ उसकी बायोप्सी हमने डिस्कस कर ली है
कैसे हो? जी जुबैदा। सर मुझे ये पूछना है कि प्रोजेस्टेरोन, हाई डोज प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है सर सी एंडोमेट्रियम में? एक जमाना था, सिर्फ तो 20 साल पहले कुछ भी करने से पहले हाई डोज प्रोजेस्टेरोन देते थे और उसके बाद कुछ करते थे। अब मैं जो जितना रिसेंटली पढ़ रहा हूँ उसमें कोई उसको हाईलाइट नहीं किया गया। आपने पढ़ा है तो मुझे बता दीजिए जुबैदा बीबी। सर मैं बताऊं? बता दे। सर मैं बताऊं प्रोजेस्टेरॉन का? हाँ जी हाँ बोलिए। सर प्रोजेस्टेरॉन उस वक्त यूज कर सकते हैं जब कंट्राइंडिकेटेड टू सर्जरी है या कीमो वो सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी ना पेशेंट नहीं ले सकती, बहुत ज्यादा बीमार है, या फिर कम स्टेज में अगर ब्लीडिंग को स्टॉप करना है ऐसी पेशेंट में जो कि बहुत ज्यादा जिसमें मॉर्बिडिटीज है, या तो फिर पैलिएशन में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं है, या तो फिर फर्टिलिटी स्पेयरिंग में सर अगर जो है ना पेशेंट फर्टिलिटी स्पेयरिंग में या तो माइलिना कॉइल हम रख सकते हैं या तो फिर हम मिडॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं। वो कब हम कर सकते हैं? जब वो कैंसर है वो स्टेज 1 है और सिर्फ इंट्राम्यूकोजल है, ठीक है, और ग्रेड 1 है, ठीक है, और पेशेंट फर्टिलिटी चाहती है तो फिर हम उसे सारे रिस्क के बारे में काउंसलिंग करके फिर हम उसे माइलिना दे सकते हैं और उसकी बायोप्सी फिर हम 6 वीक्स पे, 3 मंथ्स पे और 6 मंथ्स पे करेंगे। अगर बायोप्सी पे आ रहा है कि वो रिजॉल्व हो गया तो फिर हम उसे फर्टिलिटी के लिए आईवीएफ सेंटर भिजवा सकते हैं, और अगर वो रिजॉल्व नहीं हो रहा फिर हमें हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी। लेकिन आईवीएफ के बाद जब पेशेंट का बेबी हो जाए उसके बाद हमने उसकी हिस्टेक्टमी और बीएसओ ऑफर करना है, डिपेंडिंग के बीएसओ करना है कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत ही आगे निकल गई हो, बहुत ही आगे निकल गई हो। पहली बात तो ये है कि इस तरह की सिचुएशन थियोरेटिकल है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का पीक एज जो है वो 35 के बाद है, बल्कि 55 पोस्ट मेनोपॉज, ये बीमारी पोस्ट मेनोपॉज। तो फर्टिलिटी की प्रिजर्वेशन जो है बहुत ही अर्ली स्टेज पे कि जी पेशेंट 25-30 के दरमियान है, आपने डायग्नोस किया, एंडोमेट्रियल बायोप्सी ली, उसमें हाइपरप्लेजिया में भी कुछ एरियाज और एडवांस माइटोसिस भी है वहाँ पे। तो उस तरह की स्टेज पे आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिर्फ ये चेंजेस एंडोमेट्रियम के अंदर हैं, इंट्रा एंडोमेट्रियम है, इंट्रा एंडोमेट्रियम है। तो वहाँ से जहाँ से हम उसको स्क्रैप करके निकाल लिया और बाकी बचा ले, उसका फॉलोअप कर लिया, तो उसकी रिकरेंस नहीं है, फिर आईवीएफ में भेज दिया, फिर आ गई वापस। ये इस तरह की बातें। लेकिन जनरली स्पीकिंग हमारी प्रैक्टिस में पेशेंट जो आएगा वो, मैं तो एक लफ्ज़ है, आप ये याद कर ले मेरी तरफ से, जब भी अपने क्लिनिक में देखें मरीज मुझे दुआ दे दें और दोहरा दें ये फिक्रा, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। कोई भी आप खुद ही सोचिए, कोई भी पेशेंट है उसको मैलिग्नेंसी है, उसकी जान ज्यादा जरूरी है बाबा। फर्टिलिटी रिलेटेड हम ये ऐसी बातें करते हैं, आईवीएफ वगैरह। मैं पिछली क्लास में मैंने कहा नहीं था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैलिग्नेंसी डायग्नोज हो जाए, एक्सेप्ट के वो 28 वीक्स के इर्द गिर्द की थोड़ी सा वो डिस्कशन है, अदरवाइज फॉरगेट प्रेगनेंसी, ट्रीट मैलिग्नेंसी, फॉरगेट प्रेगनेंसी, ट्रीट मैलिग्नेंसी। याद रखिए, वो पेशेंट आपके सामने 25-30 साल की जो बैठी है, जवान लड़की, वो अपने खामद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस बच्चे से जो 28 वीक्स पे, 26 वीक्स पे यूट्रस के अंदर है। अब 25 साल के बाद इस स्टेज पे पहुंचेगा। तो इसीलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर लीजन इज लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम और फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो फिर ये लोकल एक्सीजन और एब्लेशन नहीं, लोकल रिमूवल ऑफ द एंडोमेट्रियम, उसका टेस्ट और फॉलो अप। अगर फिर नहीं है तो फिर आईवीएफ। लेकिन भूल लेना कि ये पेशेंट प्रोन टू डेवलप एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मैलिग्नेंसी वापस आएगी और उसको फिर फॉलो अप करेंगे। जी
निम्रा कुछ कहना चाहती है। सर जो हमारी फीमेल एग्जामिनर्स है ना, वो हमें कहती हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप इतने इनफर्टिलिटी को एड्रेस नहीं किया तो फिर आप जो है ना फेल हैं। सर मैं वैसे इम्तिहान से पहले आप वो जो ये बयान देती हैं उनसे पूछें, मैडम आपकी उम्र 70 साल हो गई है, ये गल्ला और जी 50 दी भी नहीं हुई, उन्होंने तुसी 70 कह दिया तो मामला तो सेट हो गया ना। कि मैडम आपने कितनी पेशेंट्स देखी हैं ऐसी जिनको आपने लोकली ट्रीट किया फिर आईवीएफ करवाया, या कितनी पेशेंट देखी है? 1 in million। पहले तो आईवीएफ सेंटर ही कितने हैं पाकिस्तान में, ऐसी बातें ना करें, आप ट्रीट द पेशेंट। लेकिन ठीक है, इम्तिहान के लिए इफ द लीजन इज लिमिटेड टू एंडोमेट्रियम देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप उसको सेव कर लें फॉर हर फर्ट। अब बस इस बात को यहाँ खत्म करते आगे चलते। क्या कुर्रतुल ऐन क्या कहती जी? कुर्रतुल ऐन ये आप ही ने नहीं लिखा कुछ? नहीं सर आईवीएफ सेंटर्स कितने हैं पाकिस्तान में ये बता दो। मैक्सिमम 20 जरूरत है 200 की। 1 मिलियन पे एक सेंटर। सर ये कॉपर आयोडीन के साथ हम बायोप्सी ले सकते हैं जी? सर कॉपर आयोडीन या मायोडीना इन सीटू हो तो हम बायोप्सी ले सकते हैं क्या? मैं आई एम सॉरी, किसकी बायोप्सी ले सकते हैं? आईवीएफ की? सर अगर कॉपर आयोडीन का रोल है प्रैक्टिकली नॉट प्रैक्टिकल। सर फॉलो अप सिर्फ वही मरीना का बार बार जिक्र हो रहा है यहाँ पे, है कि मरीना रखो। पहले वो लीजन को रिमूव कर लो, फिर मरीना रख दो, क्योंकि वो फिर लोकल हार्मोन है, इट इज यूजफुल फॉर एंडोमेट्रियम एंड वजाइना। सर जो हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, लाइक ये बस तभी तो नहीं है जब पेशेंट कीमोथेरेपी पे हो और अगर वो ब्लीड कर रहा हो तो हम पैकिंग करेंगे उसको फर्स्ट और साथ वो दे देंगे। हाई डोज प्रोजेस्ट्रोजेंस, आप प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, मैं प्रोजेस्ट्रोजन बोलता हूँ, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो वो है जो नेचुरल है, बाकी जितनी मार्केट में प्रोडक्ट्स है वो प्रोजेस्ट्रोजन है। जी हाई डोज प्रोजेस्ट्रोजन की जरूरत है सिर्फ एज ए पैलिएटिव। लफ्ज हो गया, ये पैलिएटिव का लफ्ज ये रखिए। पैलिएटिव मींस कि सब कुछ हुआ है, पेशेंट को फिर भी कुछ हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पेन है, रिकरेंस है और वगैरह, उसमें फिर लार्ज डोज प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं। सर मैं पूछना ये चाहती हूँ कि ये बस ब्लीडिंग में ही इसका रोल है ना, इसके अलावा तो नहीं है ना स्टेज 4 की मैनेजमेंट में? ये पैलिएटिव मींस के सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जब हम कहते हैं पैलिएटिव, जो मरीज को सिम्टम हो उसका ट्रीटमेंट, पेन है पेन का ट्रीटमेंट हो, या जो पेशेंट को पेन है तो जो किताब में लिखी हुई बात है, every patient of advanced malignancy should die of morphine addiction। इतनी मॉर्फिन दो, एडिक्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये सिर्फ पैलिएटिव है, पेन का ट्रीटमेंट, पेन दो, मॉर्फिन दो, फिर ब्लीडिंग है प्रोजेस्टेरोन दे दो, कोई और है जो भी है पैलिएटिव है, वो उसका कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिम्टम को रिलीव करने के साथ ताल्लुक है। एक सवाल और पूछो फिर हम बंद करें। सर इसमें सर्जरी का कोई रोल है? किसका? स्टेज 3 सी एंडोमेट्रियम में सर्जरी का कोई रोल है? मकसद उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सिर्फ कीमो रेडियो या सर्जरी पे होगी? 3A में एंडोमेट्रियम स्टेज 3A में सर सर्जरी का कोई रोल है? कोई रोल नहीं, कोई ना सर्जरी नॉट, बिल्कुल नहीं।
चलें सर कीमो रेडिएशन में कौन सी कीमोथेरेपी? आज ही बोले अगला किसने केस प्रेजेंट करना? कार्बोप्लेटिन प्लेकीटेक्स। आप डॉक्टर मारिया आप Yes, करेंगे sir. पे? हाँ जी मैं प्रेजेंट? आप अगला केस Yes, आप sir. प्रेजेंट करेंगी? यस सर कर लूंगी। चलो फिर पक्का रहना। अगला केस हमने मैलिग्नेंसी कर ली है, लेट्स से कि यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स करें। सर आपने कहा अभी सिन और वो करेंगे पेप्समेयर सिन। हाँ चलो ठीक, वेरी गुड, पेप्समेयर करेंगे, वेरी गुड। डॉक्टर मारिया, इमरान शबीर लिख लो इनका नंबर। यूवी प्रोलैप्स कर लें फिर पहले। थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके सर, Thank you for coming. I enjoyed talking to you all. I hope Thank you, all sir. of Thank you sir, thank you। Thank you sir, God bless।